Hello, welcome to class. Good afternoon, everybody. I'm Suman Bharadwaj. We'll start the next topic of aggregate demand and related concept. In till part 6, we have covered the consumption function, saving function, and marginal propensities to consume and marginal propensity to saving. There we studied about the average propensity of savings and average propensities of consumption, and next we have studied about the marginal propensity to consume and your marginal propensity to saving. Okay. Now we start, children, the relationship between the consumption function and the saving function. Relationship between the marginal propensity between MPC and your MPS. Okay, beta. Now listen, if we are studying about the marginal propensity to consume or marginal propensity to saving, it is equals to 1. Okay, the sum of marginal propensity to consume and marginal propensity is equals to 1. Okay, consumption plus saving is equals to 1. Okay, marginal की बात कर रहे हैं, when we are talking about the margin, then we will add delta. Delta means change in consumption. Then we will add delta with the S means change in saving. Okay, this delta C plus delta Y is equals to 1. Equals to 1 means it is equals to income, right? Now next, see, now dividing both the sides by y. Okay, the relationship we are existing between the MPC and MPS. What is the formula of consumption? Okay, in simple word understand. Marginal में हमेशा डेल्टा लगता है. डेल्टा represent change in saving and change in consumption. Okay, equals to 1. How we will show? Okay, your delta y is equals to consumption. Okay, your y is equals to C plus S. मार्जिनल की बात हो रही है तो तीनों में डेल्टा लग जाएगा, राइट बेटा, डेल्टा. नाउ वी विल डिवाइड on all three levels, divided by y, divided by y, and divided by y. Delta will also be added in all three. Now listen, your see here, one MPC plus MPS, marginal propensity to consume, and your marginal propensity to saving is equals to 1. Now see here, same here, income is equals to 1. When income is equals to 1 means MPS, okay, your delta y upon delta C upon delta y, here it is given. When we are talking about MPC, जब MPC पूछा जाए तो डेल्टा सी अपॉन वाई करेंगे. जब MPS पूछा जाए तो आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करेंगे, राइट. इट इज इक्वल्स टू 1. दिस इज मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी. whether it is a average propensity or marginal propensity, both are equals to 1, right. Now see, MPC
and MPS is equals to because 1 because total increment in income either used for consumption or saving. Okay, why many times in board questions ask why MPC is equals to M why MPC and MPS is equals to 1. At that time you will give the answer that there is an increment in the income and there is an increment in the income. Increment in the income means the money, the income is used either for the consumption function and remaining money left used for the saving. Right? Now with the illustration schedule we will understand and you will able to do the numerical portion also very easily by applying these formulas. Now illustration I will show you in which you have how you will calculate the marginal propensity to consume and your marginal propensity to saving, average propensity to consume and average propensity to saving. ओके इसमें आपको क्या ध्यान रखा है, बहुत सिंपल है. ओके और आप खुद कर लेंगे. योर कॉन्फिडेंस लेवल विल definitely increase. Okay, just now we have studied that APC your APC, okay, and your APS equals to 1, right? Same thing happen with the MPS. Okay, your same thing happens with the MPS. MPC plus MPS is equals to 1, right? Now with this example see how you will calculate. Very simple. Here income is given. Okay, income starts from the zero level. Zero levels means your autonomous. Okay, your consumption level is given that starts from 20 to 560. Now saving is given over here. Saving you have to calculate when consumption is given and income is given. Then how you will calculate? You will calculate the figure of saving by the formula using S is equals to Y minus C. Here I am writing. Okay. Now C. सेविंग कैसे निकालेंगे आप? इनकम कितनी है? 0 एंड 20. तो हमने माइनस किया इनकम में से 0 माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 20. नाउ सेम. ओके 100 माइनस 110 किया तो आपकी सेविंग कितनी निकली? माइनस 10. जब हमने 200 इनकम में से कंजप्शन माइनस किया तो कितना निकला? 0. जब हमने 300 में से 290 माइनस किया तो सेविंग निकल आई हमारी. जब हमने 400 में से 380 माइनस किया तो हमारा 20 निकल आया. जब हमने 500 में से 470 माइनस किया तो 30 निकला. जब हमने 600 में से 500 माइनस किया तो 40 निकला. बट इंक्रीमेंट इन द इनकम इज 100. Okay, your change in income is 100. In this way you have to calculate the saving, right? अभी हमें इक्वल्स टू APS भी कैलकुलेट करना है. मतलब एवरेज प्रोस्पेंसिटी कंजप्शन और सेविंग की भी कैलकुलेट करनी है. मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी भी कंजप्शन और सेविंग की कैलकुलेट करनी है. तो सेम फार्मूला वी विल अप्लाई. ओके जब हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं तो चेंज इन कंजप्शन हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? चेंज इन कंजप्शन वेरी सिंपल. ठीक है,
देखिए चेंज इन कंजप्शन इस कंजप्शन वाले लेवल से कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। चेंज इन कंजप्शन इधर 20 दे रखा है, उससे पहले फिगर कुछ दे ही नहीं रखा है, तो जब हमने माइनस किया तो G20 में से -0 किया डैश। अब हमने 110 में से 90 माइनस किया तो कितने बचे? 110 में से 110 में से हमने 20 माइनस किए, कितना आया? 90। Here is the 90. Okay, in the same 200 में से 110 माइनस किए 90, 290 में से 290, 90, same figure you will get, right? This is change in consumption, ठीक है। अब हम चेंज इन सेविंग करेंगे, सेम थिंग। तो चेंज इन सेविंग में हम देख रहे हैं 10-10 का डिफरेंस है। क्या है? 10-10 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि 10-10 का डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि इनकम इंक्रीमेंट इन द इनकम सेम लेवल पर हो रहा है, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड, ठीक है। इनडायरेक्टली आस्क व्हाई द चेंज इन सेविंग ओके इज सेम, तो what response you have to give? You have to give the response when the change in increment in the saving is constant, it means the increment in the income is also the same। 100 का है, इसमें भी 100 10-10 का डिफरेंस आ जाएगा। अभी देखिए हमने APC कैलकुलेट किया है C। ऐसे आप कोई भी बुक उठा लेना बेटा, यही तरीका होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। आसानी से आप न्यूमेरिकल्स बिना किसी की हेल्प के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ सी यू हैव टू कैलकुलेट द APC। APC में मैंने आपको क्या समझाया था इन प्रीवियस वीडियोस के APS में क्या होता है? कंजप्शन अपॉन सेविंग। क्या होता है? APS, what is the consumption over income, right? अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। We will apply this formula in the we will apply this formula for calculating your APC। देखो अब APC का फिगर आप कैसे करेंगे कैलकुलेट? देखो ये फॉर्मूला आप लगे रहने देना, ओके। अभी पहले हम फर्स्ट का करेंगे APC, तो आपका कंजप्शन कितना है? 20, ओके। देन 20 डिवाइडेड बाई इनकम इज योर 0, डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स टू योर इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका हम डैश शो करेंगे। अब इसमें देखेंगे कंजप्शन कितना है? 100, 110। कंजप्शन इन द टेबल इज गिवन योर 110, हेयर इट इज गिवन। इनकम कितनी है? 110 डिवाइडेड बाई 100, 100 divided by 100, 110 divided by 100 is equals to 1.1। C now listen, कंजप्शन आपका 110 दे रखा है बेटा, और ये आपकी इनकम दे रखी है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना निकल कर आया? 1.1, ठीक है। 1.10, दिस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इस ग्रेटर देन 1 का रीज़न क्या है? इस क्योंकि ये तो इक्वल्स टू 1 होता है। ग्रेटर देन 1 का रीज़न है कि दैट उसकी इनकम तो कम थी बट कंजप्शन ज़्यादा था। मीन्स कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। तो इसने इस कंजप्शन के लिए अरेंजमेंट कहाँ से करा?
अपनी प्रीवियस सेविंग से, राइट बेटा। नाउ सेम थिंग वी विल कवर बाय दिस, ओके, APC। नाउ अभी हम देखते हैं जितनी आपकी इनकम थी उतना ही कंजप्शन था, तो 200 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जितना हमने अर्न किया पूरा खर्च कर दिया, राइट। तो कभी इनकम इज इक्वल्स टू वॉट एवर वी हैव अर्नड वी हैव स्पेंट ऑन द कंजप्शन, दिस रीजन इज बिहाइंड। व्हेन इक्वल्स टू 1 रहेगा जब आपका। नाउ नेक्स्ट, in the same way you will calculate the figures, okay, do this yourself, right। now next is your APS। APS में डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, सेविंग। APS का फॉर्मूला क्या है, APS फॉर्मूला इज दिस, S अपॉन Y। तो S कितनी है 20, -20 डिवाइडेड बाई -20, डैश आ गया आपका, ठीक है, कैंसल हो गया। नाउ सी योर सेविंग इज -10 ओवर, दिस इज -10 डिवाइडेड बाई -10 डिवाइडेड बाई 100, ओके। -10 डिवाइडेड, your -10 divided by 100 is equals to 0.1, what, 0.1 आपका आंसर निकल कर आएगा, right। now see in this your APS you have to calculate। now APS saving is second line, we have third line we have to continue, okay। we will choose a last figure, okay। saving is your 40 and your income is 100, your saving is 40C here, 40 divided by income divided by 600 is equals to 0.6, ये आ गया आपका। तो 0.66 को हम किस में शो कर देंगे, 7 में, राइट, क्योंकि राउंड ऑफ में हमें लिखना है, राइट। सो दिस इज योर 7। अब हम मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम्स में करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन सी। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ये फॉर्मूला हमारा, तो डेल्टा वाई कितना है आपका, डेल्टा सी कितना है, इसको लेते हैं 90 अपॉन 100, चेंज इन इनकम है तो 90 अपॉन 100 करेंगे बेटा, क्या करेंगे हम, योर फॉर कैलकुलेटिंग MPC 90 अपॉन 100, दिस इज फिगर, चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम 100 है, ओके। तो 90 डिवाइडेड बाई 100, योर 90 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.9। देखिए आपका 90 चेंज इन कंजप्शन इज योर 90 फिगर, इट इज गिवन होगा, चेंज इन इनकम 100 है, देखो डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। हमने क्या किया तो क्या निकल कर आया, 0.9 आंसर। तो दिस इज द इक्वल, राइट। जब हम, क्योंकि 90 इधर सब में दे रखा है, डिफरेंस 100 का चेंज इन इनकम, तो 90 को 100 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर विल बी ऑब्टेन्ड, राइट। नाउ MPS की बात चल रही है बेटा। अब नाउ सी MPS, now see this is the figure of MPS,
कैसे ये फिगर निकल कर आया, बहुत सिंपल है। नाउ एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। तो चेंज इन सेविंग हमारी 10 है, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 divided by 100, this is change in saving and this is change in income। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं, your 10 divided by 100 is equals to 0.1। what answer you will get, 0.1, right? And this is same, okay, saving is same, okay, when saving is same and change increment in the income is the same, then MPC will also the same, okay, reason you understand। now next, अब अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया व्हेन द इनकम इज ग्रे, इनमें डिफरेंस वी विल, इन द डिफरेंस हम स्टडी करेंगे बेटा अबाउट द एपीसी, एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस, जो हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड किया है। अब इसमें से 4-5 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, वन वर्ड बन सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है, बहुत इजी है। कीप माय वीडियोस, वॉच रेगुलरली फॉर अटेंडिंग, देयर इज़ नो नीड ऑफ कोचिंग, ओके, यू विल सिक्योर 95% मार्क्स, ओके। नाउ सी, वैल्यूज आप देखेंगे नेगेटिव और लेस देन जीरो, ठीक है। जीरो कब होती है, जीरो जब होती है जब ऑटोनमस कंजप्शन होगा, ड्यू टू, ठीक है, जीरो का हमेशा ध्यान रखना है आपको, जब इनकी जीरो वैल्यू होगी तो इसका रीज़न क्या, ऑटोनमस कंजप्शन, ठीक है। अभी हम देखेंगे लेस देन जीरो, अब जीरो ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन, ऑटोनमस कंजप्शन, राइट। अब एपीएस का देखेंगे, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम बिफोर बीईपी। व्हाट इज दिस बीईपी, बीईपी इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब यस, व्हेन सी इज इक्वल्स टू वाई, जब कंजप्शन वाई के बराबर होता है एट बीईपी, बीईपी क्या है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। अभी आप देखेंगे एमपीसी, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, नो, एज चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी मोर देन इनकम, ठीक है, सेविंग इनकम से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। नाउ यस, व्हेन चेंज इन सेविंग इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम, ठीक है। नाउ एमपीएस, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग, no, as a change in consumption can never be more than income, yes, when change in consumption is equals to change in income। now values, okay, the values of MPC, MPs varies, हम क्या देखते हैं, कंजप्शन लेवल और सेविंग मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू, ये हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, इट्स ऑलवेज लाइज बिटवीन द 0 and 1, वेयर एज एमपीएस कैन बी नेवर लेस देन 1, ये लेस देन 1 नहीं होगा, एंड एपीसी कैन बी मोर देन 1, एपीसी आपका मोर देन 1 हो सकता है, कब हो सकता है, उस कंडीशन में हो जाएगा जब आपने प्रीवियस सेविंग के अमाउंट को यूज़ कर लिया है और आपकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ अवेलेबल नहीं है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस COVID-19 and the lockdown, okay, generally people are using the amount of their saving। let us now let
हैज़ अ कंपेरेटिव व्यू ऑफ ऑल द आइटम्स। अब कंपैरिजन किया गया है इसमें एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस सेम थिंग, ठीक है। नेगेटिव लेस देन जीरो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोमोनस कंजप्शन, नो ड्यू टू प्रेजेंस और जीरो कब, presence of autonomous consumption. APS again yes, consumption is greater than income before BOP, मिलने से intersect होने से पहले consumption और saving में greater. Yes, when consumption is equals to Y at break even point. MPS is your no, as change in saving can never be more than 1, we have studied. Yes, when change in saving is equals to change in income. MPS no, as change in consumption can never be more than change in income. Yes, why, change in consumption is equals to change in income. Now see 1, okay. यस, सी इज इक्वल्स टू वाई एट बी ए पी जब 1 के बराबर रहेगा. नो सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू 1, कोई सेविंग इक्वल्स टू 1 नहीं रहेगी. कंजप्शन ज़्यादा रहता है, शेविंग कम रहती है. यस, व्हेन चेंज इन कंजप्शन इज इक्वल्स टू वाई. यस, चेंज इन सेविंग इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम. मोर देन 1, मोर देन की कंडीशन 1 कब देती है, जब कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम बिफोर बी ओ पी. No saving can never be more than income. No, as change in consumption can never be more than. No, as change in saving can more than change in income. These ये जो डिनोट किया गया है इस सब में C बार है ऑटोमनस कंजप्शन, B ब्रेक इवन पॉइंट, C कंजप्शन, Y नेशनल इनकम, चेंज इन सेविंग, चेंज इन इनकम एंड योर चेंज इन national income. Thank you.